بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی و انت سندی و علیک اتقالی. یا حاضر یا موجود یا شاکر الحسینی انت الامام الحق المبین. دیکھی امام زمان سرکار علی وقار نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، کل اپنے واعظ کے درمیان میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خداوند تعالیٰ ہر ایک بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے انٹروڈکشن میں کچھ پیغمبر کے واقعات وغیرہ بتائے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا دوست ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. جو خدا یہ فرماتا ہے کہ وہ مومنین کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تو مومنین کا دوست ہے جو ان کو ظلمات سے، اندھیرے سے، ڈارکنیس سے، مصیبت سے، تکلیف سے، دکھ اور بیماری سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں دکھ کا نام و نشان نہیں، جہاں غم جیسی کوئی چیز نہیں. پھر دنیا میں یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ تھوڑا سا ہم یہ لفظ جو مصیبت ہے اس کے اوپر غور کریں تو مصیبت ہر انسان کے لیے یکساں طور پر نہیں آتی، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے کہ اللہ یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ خدا کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. وہ تکلیف کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ اس کی نفس جو اچھا اور برا کام کرتی ہے اس کا وبال اس کے اوپر آتا ہے، یعنی اچھے کا بدلہ اچھا ملتا ہے، برے کا بدلہ برا ملتا ہے. خدا نے ہمیں بنانے کے بعد تھوڑا سا فریڈم دیا ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، خدا کو معلوم ہے. خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کیا کرنے والا ہے،
لیکن خدا نے کیوں کہ بتایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں دونوں چیزیں وضعیت کر دی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. انسان کو خدا نے بنایا اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس میں میں نے دونوں چیزیں ڈالی اور دونوں سے اس کو میں نے الہام کر دیا، پہلے سے خبردار کر دیا. اب وہ انسان جو نیک کام کرتا ہے، اپنی نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو اس سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا قانون کہ اچھا کام کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے اور برا کام کرنے والے کو برا بدلہ ملے. تو خدا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ کر لیتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تو تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دیتا. مثلا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، 1 روپیہ اس کے ہاتھ میں دو، کہیں کھو گیا تو بچے کو یہ 1 روپیہ بہت بڑی مصیبت لگے گا، کیونکہ اس کو ایسا لگے گا کہ میری جو پونجی تھی 1 روپیہ، اس میں مجھے یہ بھی کرنا تھا، مجھے وہ بھی کرنا تھا اور یہ روپیہ مجھ سے کھو گیا. لیکن یہی روپیہ اگر ہمارے پاس سے جائے گا تو بچے کو جتنا دکھ ہوا ہے اتنا دکھ بڑوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نظر میں روپے کی قیمت کچھ اور ہے جو بچے کی نظر میں کچھ اور ہے. اسی طرح کوئی غریب کے گھر سے اگر 1000 روپے کی چوری ہو جاتی ہے تو وہ غریب کے اوپر بہت بڑا دکھ آ پڑتا ہے. لیکن کوئی امیر کے گھر سے اگر 1000 روپیہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 1000 ہی کی تو بات تھی. مطلب یہ ہے کہ مصیبت بظاہر خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن انسان میں جو قوت ہے، اس کو برداشت کرنے کی جو طاقت ہے، یا انسان کی جو وسعت ہے، اس کے مطابق انسان اس کو زیادہ یا کم لے لیتا ہے. پھر بھی خدا فرماتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم پر تکلیف ہے، تو خدا نے فرمایا کہ چلو میں تم کو دعا بھی سکھاتا ہوں. اور وہ دعا کیا ہے کہ ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو تو ہم کو گرفت نہیں کرنا، ہمیں پکڑنا نہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسی کوئی تکلیف، ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا جو ہمارے پہلے والے کے اوپر ڈالا. اور پھر اسی آیت میں آگے چل کر جو سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں خداوند تعالیٰ کتنی اچھی طرح سے مومنین کو بتاتا ہے، اور یہی دعا مانگنے کا ہمارا پہلا طریقہ ہے. یہ ہمارا دعا مانگنے کا پہلا سب سے طریقہ ہے کہ ربنا ولا تحملنا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہمیں مغفرت دے. ورحمنا، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا سب کچھ ہے. فانصرنا، ہمیں کامیابی دے. علی القوم الکافرین، کافرین قوم کے اوپر، کافروں کی قوم کے اوپر تو ہمیں کامیابی دی. اور یہ کافروں کی قوم، ایک تو یہ چیز ہے جو صحیح راستے سے ورگلانے کے لیے ہزاروں طریقے کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کو مختلف قسم کی باتوں میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں. دوسرے یہ ایسے اعمال ہے جو صحیح راستے سے ہمیں دور لے جاتے ہیں، تو یہاں ہم ایسے برے اعمال سے بچنے کے لیے خدا کے حضور میں دعا مانگتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصیبت ہر وقت کچھ نہ کچھ مقصد رکھتی ہے، اپنی جگہ پہ رکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ ہمارا اپنا معیار کیا ہے، ہمارا اپنا اسٹینڈ کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پیشتر، یعنی اسلام سے قبل عہد جہالت میں ایک عورت تھی، حضرت خنسا، جس کا نام تھا، شاعرہ تھی، شاعری کیا کرتی تھی. اس کا بھائی جب فوت ہو گیا، اس کا انتقال کر گیا، تو یہ عورت نے ایسے ایسے مرثیے لکھے کہ خود اپنے آپ کو کوٹتی تھی، پیٹتی تھی، خود روتی تھی، لوگوں کو رلاتی تھی. اور اس کے مرثیہ اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ پہاڑ اور جنگل میں بھی رونے کی آواز گونجتی رہتی تھی. یہ وہ وقت تھا جب وہ اسلام نہیں لائی تھی. بعد میں جب مسلمان بن گئی، مسلمان بننے کے بعد جنگ یرموک میں اس کی نظر کے سامنے اس کے ایک کے بعد ایک دوسرے لڑکے، 4-5 اس کے بیٹے تھے، سب کے سب شہید ہو گئے.
आखिरी बेटा जब शहीद हुआ तो खुदावंद ताला के दरगाह में हाथ ऊपर करके दुआ मांगती है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि वो रब जिसकी तारीफ है, उसने मुझे कितनी इज्जत बख्शी है। और कमनी भी शहादतिहिम, इसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मेरे बेटों की शहादत उसने कबूल की। तो ये मज़हब में आने के बाद और मज़हब से पहले की बात है। हम तो ऐसे ही मज़हब में, और फिर ऐसे मज़हब में है कि जहाँ खुदावंद ताला का नूर हमारे दरमियान में मौजूद, फिर हमें भला दुख क्या है। हम आते हैं इन बातों के ऊपर थोड़ा आगे चलकर कि पहला तरीका, जब हम खुदा की हुजूर में गिरियाजारी करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो दिल का नरम होना, हलीम होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब दिल नरम होता है, खालिस होता है, तो खालिस दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है। इसलिए आप देखें, पीरों ने गिनानों में कई कई किस्म से गिरियाजारी की है। माँ ता तमने जाऊँ अवर न जाऊँ कोई। पीर ने बताया कि जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी कोई चीज़ पाने के लिए अपने वालिदैन के पास कैसा गिड़गिड़ाता है, फिर वालिदैन को दया आती, और अगर वो देखते हैं कि ये चीज़ देने में बच्चे की भलाई है तो वालिदैन कभी मना नहीं करते, अपने बच्चे को खुश करते हैं, मतलब उसकी बात कबूल करते हैं। तो पीर ने हमको यही तरीका बताया कि बच्चा जिस तरह माँ के पास तलब करता है, इस तरह अपने हाथ उठा के खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाते हुए, ये समझते हुए कि खुदा ही ताकतवर है, वो ही हमको देने वाला है, और मुझे सिर्फ उसी की ज़ात के ऊपर भरोसा है कि वो मेरी दुआ कबूल करता है। इस तरह गिड़गिड़ा के दिल को नरम करो। दूसरा तरीका ये है कि दुआ मांगने में कभी जल्दबाज होने की ज़रूरत नहीं है। मसलन मुझे किसी भी किस्म की दुआ है, मैं डायरेक्ट वो दुआ शुरू करूँ, इससे पेशतर खुदा की हम्दो सना करना ज़रूरी है, खुदा की तारीफ़ करना ज़रूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में एक मरतबा एक शख्स ने दुआएं पढ़ी, कुछ दुआएं तलब की। आप वहाँ पर बैठे, दुआएं जब मुकम्मल हो गई तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि तुमने दुआ तो बहुत अच्छी मांगी, लेकिन देखो दुआ मांगने का ये तरीका नहीं है। पहले दुआ शुरू करो, इससे पेशतर खुदावंद ताला की बड़ाई बयान करो, उसका शुक्राना अदा करो, उसकी तारीफ करो, और फिर इनके पैगंबर के ऊपर दुआ से पहले दुरूद भेजो। दुआ मुकम्मल कर लो तो फिर उसके ऊपर दुरूद और सलवात जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ा करो। ये तरीका है। इसके बाद में एक और तरीका ये है कि जिसमें ये कहा गया है कि खुदा के पास दुआ तलब करने में कभी भी मायूस नहीं होना। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, डिस्पोंडेंसी इज़ अ सिन। इमाम ने अपने फरमान में फरमाया 48वें जामे में कि मायूसी गुनाह है। कभी थकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह दुआ मांगते हैं दीनदारों, और हमारी ये वीकनेस है, खुदा खुद फरमाता है कि खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को हमने बहुत वीक बनाया, कमज़ोर बनाया। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि मैं जिस तरह दुआ मांगती हूँ कि ये बच्चा है, बस वो कामयाब हो जावे तो बच्चा कामयाब अभी अभी हो जाए। खुदा के दरबार में दुआएं तो कबूल होती, क्योंकि खुदा खुद फरमाता है कि मैं दुआ कबूल करता हूँ और मैं सुनता हूँ तुम लोग जो मांगते हो। लेकिन दुआ कबूल होने में अपने अपने टाइम है। दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में, जिस शक्ल में इंसान चाहता है इसका दुआ का नतीजा, इस तरह उसको मिल जाए। मुमकिन है कि खुदा यही दुआ कबूल करता है, किसी और नियामत के ज़रिया हमको दुआ पहुँचाता है। लेकिन हम जो कहते हैं कि ये दरवाजे सारे खुले हैं, ठीक है, लेकिन एक दरवाज़ा जो बंद है ना, बस उसी रास्ते से मुझे बाहर निकलना है। मसलन मेरे घर पर कोई मेहमान आया, मैं इसको कहती हूँ कि भाई बाहर निकलने का दरवाज़ा ये है, वो कहता है कि मुझे तो गैलरी में से ही जाना है। मैं इसको कैसे जाने दूँ, मैं इसे कैसे जाने दूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि गैलरी से छलांग मारेगा तो ये जख्मी हो जाएगा, नीचे गिरेगा, इसका एक्सीडेंट होगा। तो मैं जानती हूँ, तो इसके जानने के बावजूद मैं उस गैलरी के दरवाजे तक उसको नहीं जाने दूंगी।
लेकिन वो भाई को वही दरवाजा दिखता है, वो कहता है नहीं ये दरवाजा बंद क्यों रखा है। तो खुदा के नजदीक भी ऐसा है कि मोमिनीन अपनी अकल से सोचता है। तो नियामतों के हजारों दरवाजे मोमिनीन के ऊपर खुले हैं और खुद इसीलिए हमको फरमाते हैं कि खुदा की रहमतों का शुक्राना अदा करो, उसकी रहमत से भागो नहीं और थको भी नहीं। एक शख्स जो रोजाना दुआएं मांगता था, लेकिन इसको ऐसा लगा, उसको महसूस हुआ कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक दिन रात को सो गया, शैतान ने आके वरगलाया इसको कि क्या मिलता है खुदा के पास मांगने से। वो कहता है ठीक है आज कुछ नहीं मांगता हूँ, सो गया। रात को ख्वाब में खिजर अलैहिस्सलाम इसके पास आए और खिजर अलैहिस्सलाम ने आकर इसको पूछा कि भाई आज क्या हो गया, तुमने दुआ नहीं मांगी। तो कहता है रोज दुआ मांगता हूँ, खुदा नहीं देता, इसलिए आज मैं सो गया। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने अपने आप पर कभी गौर किया है, रोजाना तेरे में जो नरमी पैदा होती, तू गिड़गिड़ाता है, ये बैठने की तुझे जो ताकत मिलती है खुदा को याद करने की, वो तुझे कौन देता है। आज हम अपनी जमातों में नजर करें दीनदारों, क्या सब के सब तंदुरुस्त मोमिनीन जमात खाने में पहुंचते? नहीं दीनदारों, काफी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते। मैंने दरखाना जमात खाने के पास, गार्डन जमात खाने के पास कुछ औरतों को देखा है और उनको देखते हैं तो शुक्राना के लिए खुदा की दरबार के अंदर सर झुक जाता है। चल नहीं सकते दीनदारों, हाथ और पैर जमीन के ऊपर रखकर वो चलते हैं, लेकिन सुबह शाम जमात खाने आते। ये ताकत इनको कौन बख्शता है? किसने दी ऐसी ताकत? वो मौला की मेहरबानी, वो उसकी नियामत है। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने इसको फरमाया कि तू इतना वक्त जो बैठ सकता है, ये तेरे में इतनी हलीमी पैदा होती है, क्या ये खुदा की नियामत नहीं? तू और क्या चाहता है? उसने अपनी दुआएं शुरू कर दी। खुदा कुरान में फरमाता है कि वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, वो सब कुछ तुम्हें देता गया जो तुम मांगते गए। इसलिए दुआ मांगने का एक और तरीका ये भी है कि कभी कुछ न मांगो, कुछ न मांगो, कभी सिर्फ खुदा का शुक्राना अदा करो, सिर्फ खुदा का शुक्राना अदा करो। हम खुदा की नियामतों को गिन तो नहीं सकते, क्योंकि खुदा फरमाता है इन तउद्दु निअमतल्लाह, खुदा की नियामतों को गिनने बैठे हो वला तुहसूहा, कभी इसको काउंट नहीं कर सकते, कभी नहीं गिन सकते। लेकिन हमारे चारों तरफ हमारी ज़िंदगी में खुदा ने जितनी बख्शिशें हम पर दी हैं, हमें जो अच्छी ज़िंदगी दी है, इसमें जितनी अच्छाइयाँ हैं, इसका शुक्राना तो हम खुदा के हुजूर में अदा करें। दुआ मांगने का एक और तरीका है और वो ये है कि मरीज़ों से दुआ कराऊं, जो बीमार है उनसे दुआ कराओ। अब मरीजों से हम दुआ कैसे कराएं? क्या हॉस्पिटल में जाए या कोई बीमार है इसके पास हम चले जाए, इसके खटले के पास खड़े रहकर हम ये कहे कि हम तुम्हें देखने आए और हम इसलिए आए कि तुम हमारे लिए दुआ करो? ऐसा नहीं है। मरीजों की अयादत के लिए जाना, किसी दुखी दीनदार के लिए जाना, अगर हमारे पास हेल्थ है, वेल्थ है, थोड़ी जिस्मानी तौर और थोड़ी मनी वाइज इसकी कोई हेल्प कर दे, ये दीनदार जो उस वक्त मुफलिस होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो बीमार होते हैं, इसका दिल रंजीदा होता है, उसका दिल खालिस होता है और हमारे जाने से उसको जो खुशी होती है, उसके दिल से हमारे लिए जो दुआएं निकलती है दीनदारों, हमारी दोनों जिंदगियों में हमें कामयाबी मिलती, क्योंकि मासूम दिल से वो दुआएं करते हैं, उनको अच्छा लगता है। अगर कुछ हेल्प नहीं कर सकते, जाके थोड़े मीठे अल्फाज में कुछ इनके साथ बातें करें, इनको ऐसा लगे कि हमारा कोई है इस दुनिया के अंदर। और ये तरीका तो पैगंबर का तरीका है, ये तरीका तो पीरों का तरीका है। इसलिए कहा है कि मरीजों से दुआ करें। और जहाँ मैंने शुक्राने की बात की कि इंसान के ऊपर तकलीफ आती है, मुसीबत आती है,
اور کبھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی بہترین مثال میں ڈیٹیلز میں نہیں دیتی کیونکہ ہم ہر ایک جانتے ہیں اس بات کو. حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام جب ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، زخم ہو گئے تھے، خون نکلتا تھا، گھر کا کام ہاتھ سے نہیں کر سکتی تھی، اور کسی جنگ سے کچھ قیدی آئے، اس میں کچھ عورتیں تھیں، آپ باندی مانگنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جب گئی کہ یا ابا جان ایک نوکرانی مجھے دے دے، میرے ہاتھ کے اندر یہ چھالے پڑ گئے ہیں، میں کام نہیں کر سکتی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نوکرانی دے، کیونکہ فزیکل تکلیف تھی، ہاتھوں سے کام نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں کوئی ایسا راستہ بتاؤں، میں کوئی ایسی چیز تمہیں دوں کہ جس سے تمہیں دونوں دنیاؤں میں سکون ہو. اور آپ نے ان کو تسبیح پڑھنے کے لیے فرمایا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ تسبیح پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جس کا تعلق انسان کی روح سے تھا. اور یہی چیز ہم کو بتاتی ہے کہ انسان نیک عمل کیوں کرتا ہے، انسان جماعت کھانے کیوں آتا ہے، دعا بندگی دسون اور دعائیں کیوں مانگتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرے، وہ یہ سمجھے. اور یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے کہ جب انسان دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تب یہ سمجھے کہ نحنو اقرب للحبل الورید، کہ ہم اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ قریب. فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. شہرگ تھی نیڑے رحمان، ہمارے گلے کی جو رگ ہے پیر فرماتے ہیں اس سے بھی اللہ تمہارے قریب. اور جو دیندار اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ میں ہے، وہ کبھی دکھی نہیں ہوتا. ایک شخص ایک مرتبہ سویا اور رات کو اس کو خواب آیا، اور ڈریم کے اندر وہ دریا کے کنارے پر گیا، وہاں پر چلتا ہے. اس نے دیکھا کہ یہاں جو فٹ پرنٹس ہے، دریا کے کنارے پہ ہم چلتے ہیں گیلی ریتی کے اوپر تو ہمارے پیر کے نشانات پڑتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہاں 4 فٹ پرنٹس ہے، 2 خدا کی ہے، 2 میری ہے. ایک جگہ پہ چلتے چلتے دیکھا کہ 2 فٹ پرنٹس رہ گئے. اس نے عرض کیا کہ خدایا یہ کیا ہو گیا، جب میں یوں ہی چل رہا تھا تو تو میرے ساتھ میں تھا، اور جب میرے پر مصیبت آئے تو تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس کو کہا گیا کہ تو نے ایسا کیسے سمجھا؟ تو کہتا ہے کہ اب تک تو یہ 4 نشانات تھے، اب یہ 2 نشانات کیسے رہ گئے؟ اللہ نے فرمایا تو میری بات نہیں سمجھا، تو میری بات نہیں سمجھا. پہلے جو 4 نشانات تھے تب میں تیرے ساتھ چل رہا تھا، لیکن جب تو تکلیف میں آیا تو میں نے تجھے اپنی گود میں اٹھا لیا، اس لیے تیرے نشانات مٹ گئے اور صرف میرے نشانات چل رہے. پاس چھے سامی نہیں ہے خامی، تمہیں پورو راکھجو وشواس، کہ صرف یہ سمجھنا کہ امام ہمیشہ ہمارے ساتھ میں ہے، سب گھٹ سامی مارو بھرپور بیٹھا، اتنا تمہارے قریب ہے. سوریجن تم ماہے ایو وسے جو چندہ وسے آکاش، تمہارا مالک تمہارے دلوں میں ایسا بستا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ چاند آسمان میں ہے اتنا دور نہیں، وہ تو تما ایو بسے جیو پھولو ماہے واس، کہ جو پھول کو اٹھا کے تم محسوس کر سکتے کہ اندر اس کی خوشبو رہلی ہے. اسی طرح تمہارا امام ہمیشہ تمہارے قریب ہے. اور جو مومن یہ سمجھتا ہے تو پھر دعا کا نہ قبول ہونا یہ اس کے خیال میں کبھی آتا ہی نہیں. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی چیز مانگتا ہوں، بلکہ میری جو ضروریات ہے وہ سب کی سب خدا کو معلوم ہے، خدا مجھے سنتا ہے، خدا مجھے دیتا ہے. اسی لیے ہم کو ایک دعا سکھائی گئی جو میں نے شروع میں پڑھی، ہمارا دعا کا حصہ تھا، یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی و انت سندی ولیک اتقالی، یا حاضر یا موجود، اے ہمارے امام، ہمارے حاضر امام،
तू ही मेरी कुव्वत है, तू ही मेरी पनाह है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। क्यों? कि तू हाजिर है, तू मौजूद है। इसीलिए पीरों ने जब हमको ये जमात खाने बना के दिए तो पहला कॉन्सेप्ट हमें है जिंदा और कायम पाया कर दिया कि है जिंदा। जब हम कहकर दाखिल होते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि इमाम का नूर हमेशा यहाँ पर मौजूद है। और जब कायम पाया कहते हैं तब हमको ये पता चलता है कि जो नूर पीरों ने बताया यहाँ मौजूद है उसको हमने पाया है। और इसी तरह हम मौला की जात के ऊपर भरोसा रखते हुए कहते हैं कि अंतल इमामुल हक्कुल मुबीन, तू ही यकीनी और सच्चा इमाम है जो जाहिर है दुनिया के अंदर, हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ चलता है। फिर हमें डर किस बात का? दुआ मांगने का एक और तरीका है दीनदारों, और वो तरीका ये है कि दुआ के अंदर कभी हम कंडीशन नहीं रखते। कंडीशन का मतलब है सूखा, मांगता या मिन्नतें कि भाई मेरा ये काम आसान हो जाएगा तो मैं जमात खाने में मुश्किल आसान के पैसे डालूंगी। ये हो गए कंडीशन। हम मुश्किल आसान के पैसे इसलिए नहीं डालते कि मौला पहले हमारा कोई काम करे और फिर हम करें। देखो खुदा जो है वो हमारा गुमान खुदा के तरफ जो है, हमारा जो शक है या हम जिस तरह खुदा को लेते हैं, खुदा ऐसा हमको बदला देता है। हम अगर पूरा उसके ऊपर यकीन रखते हैं तो वो पूरा बदला देता है, लेकिन हम शक करते हैं तो खुदा हमारे कंडीशन का बंधा हुआ नहीं है। खुदा हमारे कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है। वो तो जो खुद की मर्जी है वो करता है। लेकिन जहां हम कहीं फंस जाते हैं अपनी कुछ कोताहियों की वजह से, अपनी खामियों की वजह से, तो हम अर्ज करते हैं और खुदा हम पर मेहरबानी फरमाकर हमारे काम को आसान करता है। लेकिन यहाँ हम कंडीशन नहीं रखते। हम जमात खाने में जो भी पैसे डालते दुआ कराते वक्त ये पीरों का हुक्म है। और खुद कुरान शरीफ में खुदावंद ताला ने हुक्म दिया है कि जब रसूल के साथ बात करने जाओ तो कोई सदका पेश किया करो, कुछ नजराना पेश किया करो। हम जब आते हैं या जमात खाने में तो पीर ने एक तरीका दिया कि कोड़ी दमड़ी दीजिए ने दीजिए गुरने हाथ। जब हम दुआ कराते हैं तो हम कोड़ी दमड़ी, पीर ने हमको ये नहीं बताया कि बहुत बड़ी रकम लेकर और पाट के ऊपर रख देना, ये तो इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है। मौला ने बहुत बरकत दी है तो हम मौला के घर के अंदर ज़्यादा खर्च करते हैं, यहाँ कोई दिखावे की बात नहीं, अपने अपने ईमान की बात है, अपने अपने अकीदे की बात है। लेकिन पीर ने हमको जो चीज़ दी है कि कोड़ी दमड़ी दीजिए ने दीजिए गुरने हाथ। ये कोड़ी दमड़ी ये उसी कुरान की आयत का तर्जुमा पीर ने बताया कि भाई हम जब जमात खाने में जाते इमाम से हम बात करते हैं कि हमारे गुनाह की माफ़ हो, क्योंकि इमाम की तरफ से मुखी साहब ऑथोराइज है जमात में, और वो लोग हैं जो प्राट के ऊपर ड्यूटी पर बैठे। तो उनके पास जब जाके हम बात करते हैं, गुनाह का इकरार करते हैं, इसलिए हम नजराना के तौर पे कुछ पेश कर देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात हमको पेश करनी है। और इसी तरह जब हम मुश्किल आसान के लिए दुआ मांगते कि या अली हम पर ये तकलीफ़ है, हमारी ये मुसीबत है, या हमारे रोज़ी कमाई में बरकत दे, तो इस मुश्किल आसान के लिए जो बात हम मौला के पास करते हैं इसका हम नजराना डालते। हम इसलिए कंडीशन के तौर पे पैसे नहीं रखते हैं, या कंडीशन के तौर पे हम जमात खाने में झाड़ू की सुखा नहीं करते, या कंडीशन के तौर पे हम घरों में हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडे नहीं करते, या बीबी फातिमा की थाली नहीं करते, या जुमेरात के दिन घरों में किस्से कहानी की किताबें हम नहीं पढ़ते। दीनदारों किसी भी किस्म के किस्से नहीं पढ़ते। आपको मालूम है शाह मौला का रोज़ा जो सतीमा का रोज़ा कहलाता था, और इसमें एक कहानी पढ़ते थे। मौलाना हाजिर इमाम ने बंद किया ये कहानी पढ़ना, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है इसलिए हम घरों में पढ़ते। याद रखना दीनदारों, इमाम जितना देते हैं ना, पहले के ज़माने में मिक्सचर पिया जाता था ना, बड़ी बड़ी बोतलें भर के। आज कोई मिक्सचर नहीं पीता दवा का, एक छोटी सी कैप्सूल लो उनको वही फायदा मिल जाता जो दवा का पूरा बाटला उठा के पीते थे। धर्म वो है जो इमाम देता है, और ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के वक्त में एक मर्तबा जब ये बातें रखी गई कि फलाने पीर की ये देग करते हैं, पहले तो देग हम इमाम के नाम पर नहीं चढ़ाते,
हम इमाम के नाम पर देग नहीं चढ़ाते जो शाह मौला के रोजे में हम तपीले उठा कर लाते। इमाम को हम मेहमानी पेश करते हैं, और मेहमानी अच्छी खासी प्लेट में होती है या अच्छी ट्रे में होती है, तपीले उठा के हम नहीं लाते। ये देग तो उसके ऊपर चढ़ाई जाती। आप देखते हैं दूसरे नॉन मुस्लिम जो करते हैं सैयदों के और पीरों की दरगाह के ऊपर, कि जो हयात नहीं है, इमाम तो हयात है, इमाम हाजिर है, इसलिए इमाम के लिए मेहमानी लेकर जाते। यहाँ किसी किस्म की सूखा, और फिर इमाम खुद मना फरमाते हैं कि हमारे घर के अंदर किसी किस्म की सूखा या मानता नहीं की जाए। तो उसके घर के अंदर हम क्यों सूखा करेंगे, क्यों मानता करेंगे? जब मौला के हुजूर में बात रखी तो इमाम ने फरमाया कि देखो, अगर हज़रत अब्बास की देख करेंगे या किसी और इमाम के लिए कुंडे वगैरह जो करते हैं, इमाम ने फरमाया बाकी इमाम नाराज़ हो जाएंगे, बाकी सारे इमाम नाराज़ हो जाएंगे, मौला ने फरमाया। और मौलाना हाजिर इमाम की हुजूर में जब ये बात रखी, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मैं फिर से दोहराती हूँ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडे, हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की थाली या रोट, या इस किस्म के किस्से कहानी जो मन गढ़ंत चीज़ें हैं जिसमें कोई हकीकत नहीं है, इनको अगर हम घरों में करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये मौलाना हाजिर इमाम का फरमान है कि ये तमाम चीज़ें वो लोग करते हैं जिनका इमाम मौजूद नहीं है। हाजिर इमाम के लिए हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते। इसलिए किसी किस्म की सूखा और मानता इमाम के घर के अंदर नहीं है। हमको ये सूखा नहीं करनी चाहिए कि हम इतने दिन झाड़ू मारेंगे या इतने दिन हम खाना पका के जमात खाने में ले आएंगे। क्या हम अपने घरों को साफ नहीं करते? हम घरों में कोई कंडीशन रखते? घर में पकाने के लिए कोई कंडीशन रखते? घर की सफाई के लिए कोई कंडीशन रखते? नहीं रखते। वो हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, ये समझ के हम करते हैं। तो मज़हब की जितनी भी सेरेमनीज है, ये हमारा एक नेक अमाल में आता है, जिसको हम अच्छे अमाल समझकर करते हैं। जब भी वक्त मिला चले आओ, अपने आप को बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा खुद कुरान में फरमाता है कि दीन तुम्हारे लिए आसान है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, खुदा तो चाहता है तुम्हारे लिए आसानी, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, खुदा तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। फिर अपने आप पर टॉर्चरिंग करने की ज़रूरत क्या है? अपने आप को सख्ती करने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मज़हब में हमको कहा गया है कि हम 12 बजे की तस्बीह निकालें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप बताइए, पीरों के गिनान में, कुरान में, मौला के फरमान में कहीं है इसका जिक्र? है इसका जिक्र? कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि फलानी जगह पर जाकर जो तस्बीह निकालता है, इसकी कैसी भी मिन्नतें हैं, कैसी भी मुरादें हैं, वो पूरी हो जाती है। दीनदारों, इतना याद रखना कि जो खुदा ये फरमाता है कि मैं इस दुनिया में तुम्हारा दोस्त हूँ और आखिरत में तुम्हारा दोस्त हूँ, उसी खुदावंदी नूर का मजहर जो हमारे बीच में मौजूद है, हमेशा फरमाता है कि तुम मेरे रूहानी औलाद, मेरे जिस्मानी औलाद से कई गुना ज़्यादा मुझे नज़दीक हो, मेरी जिस्मानी औलाद से कई गुना ज़्यादा प्यार मुझे तुम पर आता है। क्या वो मौला हमको कभी दुखी देखना चाहेंगे? रिखी सर तारन सामी जी आव्या तो दैतो नो खंकाल, कि ये दुनिया के अंदर मोमिनीन की नजात के लिए तो मौला आया है। फिर वहाँ किस किस्म की मुसीबत? ये सारी मुसीबत ख़त्म हो जाती है, सारे लोग ख़त्म हो जाते जो हमको तकलीफ देते हैं। सामी सरोवर अमे वायला, तू तो समंदर है, हम क्या है? छोटे छोटे पानी के घड़े हैं, पोंस है, छोटे छोटे खाबोची। तम त्रुठे भरी आश, अगर तू खुश हो जा, कहीं नज़र कर दे हम पर, ये खाबोचे के छोटे घड़े को, पानी को बहा के अपने अंदर ले जा, तू अगर राज़ी होगा तो सब हो जाएगा। तो ये इसकी मेहरबानी है हम पर दीनदारों। फिर हमें ऐसी किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तस्बीहात वो निकालें जो मौला की मंजूर शुदा तस्बीह है। शाम को हम जमात खाने में निकालते हैं, सुबह जमात खाने में निकालते हैं, मुख्तलिफ मौके पर हम जमात खाने में निकालते हैं। वो तस्बीहात हम निकालें, और मौला के घर से दी हुई चीज़ें, इससे बढ़कर और कोई तस्बीह नहीं।
वो बीबी फातिमा की तस्बीह जो रसूल सल्लम ने अपनी बेटी को दी थी, हाजिर इमाम ने हमको दी है निकालने के लिए। इससे बढ़कर क्या चाहे। सलवात की तस्बीह हमको मौला ने दी है पढ़ने के लिए, और फिर इसका गिन गिन के मौला ने हमको फ़ायदा भी जताया कि कितने इसके अंदर फ़ायदा होते। फिर भी हम कहते हैं कि हम फलानी तस्बीह निकाले या फलाना भगत है। अगर भगत से और लोगों की तस्बीह से हमें बरकत होती, हमारी बीमारी दफ़े होती, तो करोड़ों रुपया खर्च करके इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने की मौला को ज़रूरत क्या थी? थी ज़रूरत? सारी जमातों में ऐसे लोगों को बिठा देते और लोग इनके पास जाते, अपनी मुश्किल आसान कर लेते, अपनी बीमारी दूर कर लेते और अपने घरों के अंदर पैसे ही पैसे कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता दीनदारों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है सिवाय के इंसान खुद मेहनत करे। और खुद खुदा फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता, वमा हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम, जब तक वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करे। तो दुआ मांगने का एक तरीका ये है कि पहले हम अपने आप को दुआ कबूल करने के लिए दिल को तैयार करें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप में तब्दीली लाए। ऐसा न हो कि हम ज़बान से तो ये कहे कि या मौला तू हमें तंदुरुस्ती दे, लेकिन हेल्थ के जो कवानीन है, तंदुरुस्ती पर चलने के जो कवानीन है, उससे हम बिल्कुल बरक्स चले, खिलाफ चले। हम शराब पिए, सिगरेट पिए और जो भी ऐसे काम है सब करें, और फिर हम ये कहे कि खुदा तू हमारी हेल्थ अच्छी रख, तो कहाँ से हेल्थ अच्छी हो। इसीलिए अल-लिसानु युसब्बिहु वल क़ल्बु युज़ब्बिहु, इस मुहावरे में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ज़बान तो तस्बीह पढ़ती है और दिल ज़बा करता है, काटता है। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जो बात हम ज़बान से करते हैं वो दिल से होना ज़रूरी है, और फिर अमल उस ज़ात के ऊपर करना ज़रूरी है। जो भी हम काम या जो भी दुआ हम मांगते हैं उसके मुताबिक अमल की ज़रूरत है। अगर उसके मुताबिक अमल नहीं है तो दुआ में इतना फ़ायदा नहीं होता है। दुआ मांगने का एक तरीका जो मौला ने अपने फरमान में फरमाया कि अपने हक़ में दुआ मांगो, इससे पेशतर अपने दीन भाइयों के हक़ में दुआ मांगो। और दीनदारों, जब हम दीन भाइयों के हक़ में दुआ मांगते हैं, इस्माइली कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। एक इमाम के हम रूहानी बच्चे हैं, आपस में सब भाई बहन हैं, फिर भी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ही कमज़ोर है, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी किसी को दुश्मन समझ लेते हैं। ऐसे मौके पर ऐसे दीनदारों को याद कर करके कि जिसके लिए हमारे दिलों में नफरत है, इनके लिए बद्दुआ नहीं, उनके हक में दुआ मांगो और मुसलसल दुआ मांगते रहो। देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। कभी कभी इंसान कहता है कि हम बहुत दुआ मांगते हैं लेकिन इसको फलता नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कभी इंसान चेंज हो जाता है। ये इसको तब्दीली कहाँ से आती? क्योंकि दुआ का तो काम है इंसान के दिलों को सुकून देना। कभी ऐसे दीनदारों के हक़ में हम दुआ मांगे, फिर उनकी भलाई के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए दुआ मांगे। अपने लिए कभी भी बद दुआ नहीं मांगना, ये भी एक तरीका है। जितना हो सके अच्छी दुआ मांगे, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक शख्स ने बीमार पड़ा और रसूल सल्लम इसकी अयादत के लिए गए, तो रसूल सल्लम ने इसको फरमाया कि तूने अपने लिए कोई बद्दुआ की थी? उसने कहा कि नहीं। याद करो। उसको याद आया, उसने कहा हाँ मैंने ये दुआ मांगी थी कि जो कुछ तकलीफ़ मुझे आखिरत में मिलना है वो दुनिया में मिल जाए, इसलिए मैं बीमार पड़ा। तो रसूल सल्लम ने फरमाया देखो ऐसा नहीं मांगो। इस्लाम कहता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना, हमें दुनिया में भी भलाई दे, हमें आखिरत में भी भलाई दे। तो ये इस्लाम हमें सिखाता है। इसलिए दोनों दुनियाओं की भलाई मांगो। ये मुख्तलिफ तरीके जो दुआ के मुझे आपको बताने थे कि हम हमेशा खुदा को हाजिर समझते हैं, और फिर यही कहा जाता है कि बारगाह इज़्ज़ती से यूं न तू मायूस हो। मुश्किलें क्या चीज़ है,
मुश्किल कुशा के सामने कि जो मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान में बैठे हैं, उनके नूर में हम खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। दीनदारों, हमारे दिलों में कैसी तकलीफ़, हमारे लिए कैसा दुख। हम तो मौला के गले के हार, इमाम के गले में बैठते हैं। खुद इमाम ने फरमाया कि जब मेरे मुरीद के ऊपर कोई तकलीफ़ आती है तो मुझे दुख होता है। मौला ने फरमाया कि कोई हमें 100 मरतबा तलवार मार के ज़ख्मी भले कर दे, लेकिन मेरे मोमिन को थोड़ी सी सुई भी चुभती है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये रहम रहमी मौला है। सिर्फ इतना ही है कि मज़हब जो चीज़ पर हमें अमल करने के लिए कहता है, उस चीज़ पर अमल करते हुए हम सिर्फ यही अर्ज़ करें कि हम खुदा के हुज़ूर में बैठे हैं और खुदा ही से हम मांगते हैं। पीरों ने हमें बेहतरीन तरीका दिया है और इसी तरीके के साथ मैं अपने वाज को मुकम्मल करती हूँ। ए जी शाह द्वारे आमे जा छूटे ते सर्वे जीवना झंझार, जा हीड़ा खीड़ा आगे कई जीव उगरिया, त्या स्वामी अमारो जीव छे उमेदवार रचे लिखी सरो। गुर कहे साचा सतगुरे एम कया। ये पीरों का तजर्बा है और तजर्बे के साथ पीरों ने हमको बताया कि जे जे मांगो ते तू ही देवे, जो कल के वाज में मैंने कहा था। और इसी गिनान के आखिर में सैयद मोहम्मद शाह ने यही बताया कि बोलिया सैयद मोहम्मद शाह शरण तुम्हारी, तुझे छोड़ी दूजे द्वारे कहाँ जावे। हमारे लिए एक ही रास्ता है जहाँ हम दुआएं मांगते हैं। दिनदारों, 2 दिन से आपके दरमियान में ख़ास तौर पे क्लिफ्टन के स्टडी ग्रुप के चेयरपर्सन और इनके मेंबर्स, जमात के मुखी कामड़िया साहिबान, मुखियानी कामड़ियानी माँ और दूसरे अमलदारान जिन्होंने ये मौका मुझे दिया, और आप सब जमात जिन्होंने अच्छी तादाद में हाज़िरी देकर मेरी हौसला अफजाई की है, मैं इस मौके पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वास के दरमियान मुझसे कोई कोताही रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मौलाना हाज़िर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकती समझ अता करे, नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Imam